بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے جو ٹیبل بنائے تھے خاص طور پر انڈیویجول ڈیٹا کے لیے، تو اس میں فریکوینسی ہم نے فائنڈ نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم جو پڑھیں گے وہ مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن فار گروپ ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ تو گروپ ڈیٹا کے لیے جب ہم ایک ٹیبل کو بناتے ہیں تو وہ سمپل ٹیبل نہیں ہوگا، وہ فریکوینسی ٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آلریڈی آپ نے رینج کا فارمولا جو ہے وہ بھی دیکھا ہوگا اور کل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ویریئنس جو ہے وہ بھی فائنڈ کیا ہے، اس کی بھی فارمولے ہیں، اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا بھی جو ہے جب ہم ویریئنس پہ انڈر روٹ یا اسکوائر روٹ لیتے ہیں تو اس سے ہمارا جو آنسر آتا وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آتا۔ لیکن آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ صرف اور صرف ہم اس میں فریکوینسی کو بھی انکلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن فار گروپ ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف اور صرف فریکوینسی جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم فریکوینسی کو فائنڈ کریں گے تو ہمارا جو کویسچن ہے وہ ایزیلی سالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مین کو کیسے فائنڈ کرنا ہے گروپ ڈیٹا کے لیے، یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے سمیشن ایف ایکس ڈیوائڈ بائی این۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، فریکوینسی انکلوڈ ہو گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس جو ویریئنس ہے ہمارے پاس اسکوائر، تو یہ ہمارے پاس سمیشن ایف ایکس مائنس ایکس بار اسکوائر ڈیوائڈ بائی این مائنس 1، یہ ہمارے پاس ویریئنس، اور ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے تو وہ کیسے آئے گا، وہ آئے گا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایکس مائنس ایکس یہ اسکوائر ڈیوائڈ بائی این مائنس 1 انڈر روٹ۔ تو یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یہ ہمارے پاس ویریئنس، اور یہ ہمارے پاس جو ہے مین، ٹھیک ہے۔ تو ان سب میں ہم نے صرف اور صرف کیا انکلوڈ کیا، فریکوینسی کو ہم نے انکلوڈ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک کوسچن دیا ہے، ایگزامپل نمبر فرسٹ، کیلکولیٹ مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دی فالوئنگ ڈیٹا سیٹ بائی میکنگ فریکوینسی ٹیبل، نمبر آف چلڈرن ان ڈفرینٹ فیملیز۔ یہ ڈیٹا سیٹ دیا ہے، ایک لمبا چوڑا ڈیٹا سیٹ ہے، اور ہم سے کیا کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہے، ایکس مین مائنس اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ مین پلس اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ٹھیک ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ہم نے سب سے پہلے مین سے مائنس کرنا ہے اور پھر مین سے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایکس مائنس 2 مطلب مین مائنس سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سیکنڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یہ تھرڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کو پتا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے، what percentage of measurement fall within each interval۔ ایچ انٹرول کے لیے، ہر انٹرول کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، پرسنٹیج کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، پرسنٹیج کو نکالنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے فریکوینسی ٹیبل بنانا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر آف چلڈرن ہمارے پاس کتنے ہیں، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 تک ہے، اور اس کے اپنے اپنی فریکوینسی ہے، ٹھیک ہے۔ 0 3 بار آیا ہے، 3 ٹائم آیا ہے، 1 2 3، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے فریکوینسی کیا لگایا، 3 لگایا۔ 1 2 ٹائم آیا ہے، 1 2 ٹائم آیا ہے، 1 اور 1، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 2 ٹائم آیا ہے۔ اسی طریقے سے 2 5 ٹائم آیا ہے، 3 5 ٹائم آیا ہے، 4 6 ٹائم آیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے فریکوینسی کو سم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب فریکوینسی کو ہم سم کریں تو اس سے 30 آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، فریکوینسی کو نمبر آف انڈیویجول کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم فریکوینسی کو نمبر آف انڈیویجول کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ایف کیا ہے 3 ہے، اور ایکس کیا ہے 0 ہے، 3 0 0۔ یہاں پہ ہمارے پاس فریکوینسی 2 ہے، ٹھیک ہے، اور ایکس نمبر آف انڈیویجول 1 ہے، 2 1 2۔ اسی طریقے سے 5 2 10، 5 3 15، 6 4 24، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایف ایکس فائنڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ایکس مائنس ایکس بار
होल स्क्वायर। और ये हम क्यों फाइंड करते हैं आपको पता है, हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंस समेशन एफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन हम कहां से फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे, डेटा सेट से फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, फिर हमने इस पे स्क्वायर लेना है, ठीक है। जब ये हम फाइंड करेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर हमने सबका समेशन लेना है, ठीक है। तो फिर इसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं वो हमने काउंट करना है और इससे 1 माइनस करना है और फिर इस पे डिवाइड करना है। तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी फाइंड हो गया, अब एफ एक्स भी फाइंड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स इसके बाद हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, ग्रुप डेटा के लिए मीन हम ग्रुप डेटा के लिए समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय ये, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप देखें समेशन एफ एक्स कितना है, ये एफ एक्स है, ये आपने सम करना है। तो इससे क्या आएगा 105। तो 105 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये सब जो है 30 है। ये फ्रीक्वेंसी जब आप काउंट करें तो ये 30, तो ये हमारे पास क्या है 30, ये आप काउंट करें ये 30 है, तो 30, तो इससे क्या 3.5। तो हमने मीन फाइंड किया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल से मीन माइनस करना है, ठीक है। तो ये भी हम माइनस करते हैं, ठीक है, ये भी हम माइनस करते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ये क्या है, ये हमारे पास मीन है, ठीक है, ये मीन। तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल से हम मीन माइनस करते हैं और फिर इस पे स्क्वायर लेते हैं। तो इससे क्या आंसर आएगा, ये इससे क्या, ये सब आप देखें ये इसी तरीके से है, ठीक है। इसी तरीके से 1 नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1 माइनस 3.5 क्या है, मीन है, ठीक है। तो ये मीन हम 1 से माइनस करें और स्क्वायर ले तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब इसी सीक्वेंस से है। अब इसके साथ हमने फ्रीक्वेंसी को भी मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 3 है यहाँ पे, और 3 है, और इससे क्या वैल्यू है 12.25। तो 12.25 जब 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो इससे 36.75, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी यहाँ इसी तरीके से ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये आगे जो है ये क्या है, ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 5 है, 5 2। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड करना है, इसके समेशन निकालना है। तो जब हम इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, इससे 129.5, ठीक है। तो समेशन एफ इनटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये आंसर आएगा, ठीक आ गया, ठीक है। तो अब हमने इस फॉर्मूले में फुट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस ये जो इसका जो आंसर है वो क्या है 129.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब 30 है। तो इन क्या है 30 है, इससे 1 को माइनस करना है, ठीक है। तो 129.5 डिवाइड बाय 29, इससे क्या आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा 4.46। तो ये हमारे पास क्या आया, वेरिएंस आया। अब वेरिएंस के बाद हमने क्या करना है, इजीली हमने वेरिएंस पे स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम वेरिएंस पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन देगा। जब आप इस पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये हमारे पास क्या आएगा 11 आएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या आया 2.11, और वेरिएंस हमारे पास क्या आया 4.46, ठीक है। और मीन हमारे पास क्या आया 3.5। तो ये हमने क्या किया, हमने इस फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रा किया और इसी की हेल्प से हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड किया और मीन को भी फाइंड किया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मीन से स्टैंडर्ड डिविएशन माइनस करेंगे और फिर मीन के साथ हम स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करेंगे। तो इससे जो वैल्यू आएगा, तो इससे वैल्यू जो आएगा इसको हम रेंज, इसके लिए हम रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये रेंज किस लिए फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। तो फिर इससे हमारा जो है परसेंटेज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, ये क्या
x माइनस एस एक्स प्लस एस। अब ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हमने क्या करना है, x माइनस एस एक्स प्लस एस, ठीक है, ये हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मीन हमारे पास क्या है, मीन हमारे पास 3.5, ठीक है, हमने सोल्व किया पहले। और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या है, 2.11, ठीक है। तो जब हम इससे ये माइनस करें तो अब 1.39 ये आंसर आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मीन हमारे पास क्या है, 3.5 है, ठीक है। इसके साथ आपने स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करना है 2.11, इससे क्या आएगा 3.5 प्लस 2.11, ठीक है। तो ये हमारे पास 5.61 के। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक रेंज आया 1.39 से एक रेंज आया 5.61 तक, ये एक रेंज है। अब इस रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 1.3 और 5.61 को यहाँ पे टेबल में देखना है, ठीक है। तो 1 हमारे पास ये है और 1 के बाद 1.39 आएगा, ठीक है, 1 के बाद 1.39, तो एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 5.61, तो 5.61 का क्या मतलब है, 5 के नीचे जो है, ठीक है, ये 5.6 यहाँ पे कहीं आएगा, तो एक लाइन आपने यहाँ पे ड्रा करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए, 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 + 5 10, 10 + 6 16 और 4 20। तो हमारे पास कितने वैल्यूज आए, कितने फ्रीक्वेंसी आए, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आए, 20 हमारे पास आए, ठीक है। 20 हमारे पास इस रेंज के बीच में है 20। तो अगर हमारे पास 20 1.39 5.61 के बीच में 20 है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, और हमारे पास ये जो टोटल है, टोटल हमारे पास 30 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितना है, 30 है, और इस रेंज में कितने हैं, 20 है, यहां पे आपने काउंट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, 20 को 30 पे डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 0 कट, ठीक है, ये हमारे पास क्या, इससे क्या आंसर आएगा 66.6%, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज किया है 66.6, इसके लिए हमारा परसेंटेज किया 66.6% आया इस फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या करना है, अब सेकंड, आल्सो कैलकुलेट x - 2s x + 2s, ये फाइंड करना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन प्लस सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें मीन हमारे पास क्या है 3.5, जो हमने पहले फाइंड किया इस डेटा सेट से, -2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 11, 2.11, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो 3.5 - 2 4.22, और जब आप इसको -0.72 ये आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3.5 + 2 × 2 11, 3.5 + 4.22, इससे 7.72। तो अब हमारे पास ये क्या रेंज है, -0.72 to 7.72, इस ये गौर से आप देखें। अब इसको फाइंड करना है, तो इसका क्या मतलब है, -0.72, ये तो 0 की इक्वल है, ठीक है। तो रेंज हम कहां से, 0 से 7.72 तक। तो अब आप देखें ये 0 है, तो ये 0 है, यहां से 7.72, तो 7.72 यहां पे कहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब आपने ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपस में ऐड करना है, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6
14, 19, 24, 26, 27, 28, 29, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आई 29। इसके बीच में बिटवीन 0 एंड 7.72 29 वैल्यूज जो है प्रेजेंट है 0.72 7.72 के दरमियान, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है 29 को 30 पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमें परसेंटेज देगा, ठीक है। आंसर 96.6%, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया 96.6, तो ये हमारे पास क्या आया इसके लिए 96.6%, इसके लिए 66.6, इसके लिए 96.6। तो हमने क्या कहा था फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 68%, ये लगभग इसके करीब है, ठीक है। और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन 95% हमने कहा था, तो ये क्या आया 96.6%, मतलब 95 के करीब है, ठीक है। तो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमने फाइंड किया, ठीक है। अब हम थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये, तो ये हमने कैसे फाइंड करना है x minus 3s x plus 3s, मीन हमारे पास 3.5 minus 3 into 2.11, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 2.11 आया था, 3.5 plus 3 into 2 11, ठीक है। तो इससे क्या आएगा 3.5 minus 6.33, ठीक है, माइनस 2.83, ठीक है। और इससे क्या आएगा 3.5 प्लस 6.383 9.83, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक है 83 9.83, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से 8 तक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज, ये हमारे पास आउट ऑफ रेंज है, लेकिन ये 100% कंसिडर होगा, अप्रोक्सीमेटली 100%, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 66.6%, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 96.6% और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 100% हमने फाइंड किया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और वैसे हमने जो ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था इससे पहले जो स्टैंडर्ड है तो वो हमने क्या फाइंड किया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 68% है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन 95% है, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन 97.7% है, ठीक है। और ये भी हमने लगभग इसी तरह हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है।